Basically, we talked about mechanism of reaction or GOC. Okay, and the first topic was basically bond fission. Just a review of last session. Bond fission is of two types. One is homolytic, one is heterolytic. Basically, it gives free radicals, and by heterolytic we get ions, positive and negative. Free radicals are paramagnetic in nature, while the ions are diamagnetic in nature. Usually homolytic takes place at very high temperature or in presence of sunlight, free radical generator, something like this. Second heading is attacking reagent. So attacking reagents are basically two types. One is electrophile, basically those compounds which can accept lone pair of electron or which can accept electron. They are electron deficient, or maybe they have tendency to gain electron. So they are electron loving species. They have tendency to gain electron. Whatever the reason, due to vacant orbital or whatever the reason, they are electrophile. You have to remember the examples of neutral electrophile as well as charged. Positive charge electrophile are basically alkyl. This is known as acyl, 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 and similarly NO2 or Cl, chloronium. These are electrophiles. Okay. Neutral electrophiles like AlCl3, electron deficient, Grignard reagent, electron deficient, yeah, you can say free radicals. They are also electrophiles. Followed by the next category of electrophile may be like SiCl4. They have vacant orbital. FeCl3, iron, vacant orbital. And last one is SO3 due to cleavage of pi bond. Next, nucleophile. What are nucleophiles? So basically, nucleophile means they are electron rich. Okay, electron rich, and they attack where electron density is less. So the meaning of electron rich is they have lone pair. And the negative charge examples are like NH2 negative, R negative, or whatever, OH negative, F negative, or all, or you can say any anion. And in case of neutral, basically group 15 element like nitrogen, group 16 element like oxygen, group 17 element like halogens, and their derivatives. Okay, these are all nucleophiles. They have lone pair of electrons. Followed by next, the next heading was effects or electronic displacement. So the effects or electronic displacements are of two types. The first is temporary effect, you may say, which only comes into action when the attacking reagent approaches, while permanent effect are those which takes place always independent on the approach of attacking reagent. In case of temporary effects, the effect is removed as soon as attacking reagent is removed, or we can say original condition is restored as soon as attacking reagent is not there. So we are starting with the first permanent effect. So the permanent effects are two. One is inductive and other is mesomeric. Let's start with inductive effect. तो आज की पढ़ाई बेटा अब शुरू होगी, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट से. ठीक है, इससे पहले का हमने जस्ट एक रिकैप करके देख लिया 5-7 मिनट्स में कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था. So we are coming now shifting into inductive effect. It is also termed as eye effect.
बेसिकली आई इफेक्ट का मतलब क्या है, सेंस क्या है बेटा? अगर ये एक ए एटम है और एक बी एटम है, सपोज टू डिफरेंट एटम्स आर देयर एंड दे आर लिंक्ड विथ कोवेलेंट बॉन्ड, या कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच में है, और इसमें कोवेलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट डिस्प्लेसेस, शिफ्ट्स टुवर्ड्स एनी वन ऑफ देम, या तो वो बी की तरफ चला जाएगा या ए की तरफ। इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेट्स सपोज, थोड़ी देर के लिए कह रहे हैं बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। इफ बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, then the shared pair of electron will move towards B. definitely, because it is more electronegative, then electron will shift towards this, and due to the shifting of there, it is only partial displacement. Something condition becomes like this, and here we have to impose negative but partial negative, and here partial positive charge. So basically it is polarization of sigma bond. यहां तक आई होप सो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड था ये पोलराइज हो गया ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी वजह से पार्शियल चार्जेस आए। बोलो यहां तक क्लियर है? जी। तो ये जो पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से, बेसिकली यही इंडक्टिव इफेक्ट है, या अगर हम कहें रूट कॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज दिस। एक्सटेंशन बहुत कुछ है आगे, बट द रूट कॉज, द प्रिंसिपल बिहाइंड इंडक्टिव इफेक्ट इज पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है एंड इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। इन नटशेल हम कई बार ऐसे मजाक में कहेंगे कि अगर ए और बी हैं, लेट सपोज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस, तो हम इसे मजाक में ऐसे कह देते हैं, ये वर्ड बना लेते हैं MENA, मीना। मीना वर्ड सुना है कभी आपने? जी। इट इज व्हाट इज मीना? नाम है मतलब। हाँ, एक नाम भी होता है गर्ल्स में मीना, ठीक है। बट एक आध पिक्चर भी आई थी शाहिद कपूर की, इसके पीछे कुछ प्रीफिक्स लगे थे तो भी मीना वर्ड आता था उसमें, बट छोड़ो उसे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो कई लोगों को हम कहते हैं ना कि यार तुम्हारी बड़ी मीनी हरकतें हैं, तुम बड़े मीना टाइप के हो, वो प्रीफिक्स हटा दिया हमने, बाकी समझ गए क्या कह रहे हैं। तो इसको हम कई बार फनी टोन में ऐसे यूज करेंगे, ये देखो ये मीना है, और अगर ये मीना तो मीनी हरकत करेगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, then electron shift towards this mina, and due to getting more electron it gets partial negative and the other atom gets partial positive charge. Is it clear? ठीक है। Now this one is partial negative charge. Now you have to apply this on organic chemistry, carbon, so you have to understand why it is named as inductive. What is the sense of the word inductive? तो ये अगर एक कार्बन की चेन है, इट इज कार्बन चेन, एंड यहाँ पे ये कोई एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम व्हाटएवर ये लगा है, तो इस कार्बन और इस क्लोरीन में ये सिग्मा बॉन्ड है, एंड बेसिकली इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, एंड क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हमें पीरियोडिक टेबल की नॉलेज से पता है, chlorine is more electronegative, so definitely chlorine should get minus negative charge and the carbon must get plus, that is same delta charge, negative delta partial charge. Let's suppose हमने इन चार्जेस को ये कह दिया, but the point is this, ये कार्बन पिछले कार्बन से जुड़ा है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, और क्योंकि इस कार्बन पे चार्ज आ गया है, that means this carbon now turns to be little bit इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो काम क्लोरीन ने इस कार्बन के साथ किया, अब ये कार्बन पिछले कार्बन के साथ करेगा, बिकॉज ये नहीं कहेंगे कि दोनों कार्बन है, बिकॉज दिस कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज, तो ये पीछे वाले से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ओके, एंड सिमिलरली ये काम आगे भी होगा,
that means this charge travel throughout the chain with decreasing intensity. You have to remember decreasing intensity. तो ये चार्ज पूरी चेन में जा रहा है, तो इसे इंडक्टिव क्यों कहा? बेटा एक बार सोच के देखो, आई होप सो यू गेट द वर्ड, द फीलिंग। यहां हमने कहा ये कार्बन चेन है, ये क्लोरीन है, क्या ये वाला कार्बन इस क्लोरीन से डायरेक्टली अटैच्ड है? नो, लेकिन इस क्लोरीन की वजह से इस पे चार्ज आ रहा है। तो बेसिकली दो चीजें अगर अटैच ना हो बट एक दूसरे पे इंपैक्ट डालें, दिस इज इंडक्शन, देयरफॉर द इफेक्ट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्शन आपने सुना होगा, इंडक्शन कुकर्स, इंडक्शन चीजें देखी होंगी, या इंडक्शन इन जनरल फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि एक वायर पे अगर प्लस चार्ज जा रहा है तो दूसरी वायर पे माइनस चार्ज अपने आप डेवलप हो जाता है, दैट इज इंडक्शन। ओके, तो अपोजिट चार्जेस का जनरेशन इंडक्शन है, और इसी को जब यहाँ दो चीजें कनेक्टेड नहीं है फिर भी चार्जेस ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज इंडक्शन, देयरफॉर दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। बोलो क्लियर है? तो व्हाट इज बेसिकली इंडक्शन? वेरी सिंपल एग्जांपल कि अपोजिट इंपैक्ट आएगा। आप कोई ना छोटा मोटा काम कर लो, लेट सपोज आपने पॉकेट मनी कलेक्ट की और आपने लेट सपोज एक BMW कार परचेज कर ली, इज इट क्लियर? तो अगर आप पॉकेट मनी से BMW परचेज कर लोगे ना, तो ऑब्वियसली आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर, उनके पेट में दर्द होने लगेगा, ठीक है, दे गेट इरिटेटिंग फीलिंग। तो ये क्या है, आप जितने स्माइल करते जाओगे वो उतने ज्यादा प्रॉब्लम में आते जाएंगे, दैट इज रिवर्स इफेक्ट होगा, दैट इज इंडक्शन। या कभी कभी फ्रेंड्स में भी होता है, अगर फ्रेंड बाई चांस फेल हो जाए तो बुरा तो लगता ही है ना, लेकिन बाई चांस फ्रेंड टॉप कर ले तो और तो बुरा और ज्यादा बुरा, दैट ठीक इज है। अ ह्यूमन टेंडेंसी। हम्म, ओके, याद आ गया। तो हम्म, दैट इज बेसिकली इंडक्शन। इस इफेक्ट को इंडक्टिव कहा गया। नाउ इस इफेक्ट के अभी तक के पॉइंट्स क्या क्या हुए हैं इंडक्टिव इफेक्ट के? बेटा इंडक्टिव इफेक्ट का पहला पॉइंट आया, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। सेकंड पॉइंट आया, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन या सिग्मा बॉन्ड का रोल है, पाई का नहीं है। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग है, इट इज बेसिकली गवर्न ड्यू टू डिफरेंस को डेल्टा लिखते हैं, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है। और क्योंकि सिर्फ शिफ्ट हुआ है तो पार्शियल चार्जेस आएंगे, और ये चार्जेस ट्रेवल करेंगे थ्रू आउट द कार्बन चेन, ये पूरे के पूरी चेन में ट्रेवल करेंगे विद डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। तो यहाँ इनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। यूजुअली हम कहते हैं एक कार्बन से दूसरे कार्बन तक जाते जाते नियरली 1/3 हो जाती है इंटेंसिटी, दैट मीन्स इट डिक्रीजेस वेरी रैपिडली। तो जो इम्पैक्ट पास में लगा है उसका ज्यादा है, जो एटम दूर लगा है उसका इम्पैक्ट बहुत कम है। तो इंडक्टिव इफेक्ट decreases as we move along the series और chain, और पूरी चेन में इसलिए जाएगा क्योंकि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का है, और ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज प्रेजेंट। पाई बॉन्ड का ये होता है बनेगा या नहीं बनेगा, सिग्मा बॉन्ड तो हमेशा है, एवरी सिंगल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड इज फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा बॉन्ड। तो यहां तक के अभी तक के 3-4 पॉइंट जैसे एक ही सेंटेंस में कह सकते हैं कि इट इज अ परमानेंट इफेक्ट इन विच सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड। यहाँ डीलोकलाइज वर्ड नहीं कहेंगे क्योंकि पोजीशन हमें पता है थोड़े से शिफ्ट है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ड्यू टू विच partial charges develop, and this effect decreases as we move along the chain rapidly। और कई बार ये भी लिखा होता है कि after 2 or 3 carbon it becomes नेग्लिजिबल, ये इफेक्ट खत्म भी हो जाता है 2-3 कार्बन के बाद। नाउ नेक्स्ट पॉइंट विच इज मोर इंपॉर्टेंट, कि ये जो सिग्मा या ये सॉरी इफेक्ट है, ये एटम्स और ग्रुप्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। प्लस आई ग्रुप होते हैं, माइनस आई। तो बेसिकली एटम्स और ग्रुप कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। देखो ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, रिमेंबर दिस, यहां
कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को लिया गया है नो इंडक्टिव इफेक्ट या नो आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट है ही नहीं किसमें, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। नाउ अब अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप लगा रहे हैं, सपोज कोई एटम हमने X लगाया एंड X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। X एक ऐसा एटम है जो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ज्यादा नेगेटिव है। सो इट इज अ कॉमन सेंस, अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन सपोज कार्बन से यहां तक खींचता था और ये नो इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता था, लेकिन X हाइड्रोजन से पावरफुल इलेक्ट्रॉन पुलर है या विड्रॉइंग ग्रुप है, तो X जैसे ही आएगा तो दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स X बिकॉज X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, देयरफॉर इट गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस एटम पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, या ये कहें ये एटम जो हमारा ऑर्गेनिक पार्ट है कार्बन है उस पे प्लस चार्ज डेवलप कर रहा है, ऑर्गेनिक पार्ट से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और ऑब्वियसली ये मीना है तो मीनी हरकत तो होगी इसकी, दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींचने का ही काम करेगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर X आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इट डिक्रीजेस, these atom decreases electron density on organic part। ऑर्गेनिक पार्ट पे ये अपनी जो ऑर्गेनिक पार्ट है उससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ऑर्गेनिक पार्ट की डेंसिटी कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? दे डेवलप पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑर्गेनिक पार्ट। अब आपको जो मेन पॉइंट याद रखना है वो यही है कि माइनस आई कहलाते हैं ये ग्रुप, ऐसे ग्रुप कहलाते हैं माइनस आई ग्रुप। तो बेसिकली माइनस आई किन्हें कहेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें गलती मत करना। माइनस आई का मतलब ये नहीं है कि ये ऑर्गेनिक पे माइनस चार्ज डेवलप कर रहे हैं, माइनस आई का मतलब है ये ऑर्गेनिक पे तो प्लस चार्ज डेवलप कर रहे हैं, इन ग्रुप्स पे अपना चार्ज माइनस आता है। तो ये गलती हो जाती है स्टूडेंट से कि माइनस का मतलब ये तो नहीं है कि ऑर्गेनिक को नेगेटिव दे रहे हैं। तो बेसिकली माइनस आई आर दोज एटम और ग्रुप which are more electronegative than hydrogen, which decreases electron density on organic part, which develops positive charge on organic part। जब भी ये लगे होंगे तो ऑर्गेनिक पार्ट के इलेक्ट्रॉन खिंच जाएंगे, कम हो जाएंगे। सच ग्रुप्स आर माइनस आई। क्लियर है माइनस आई ग्रुप? व्हाट आर माइनस आई ग्रुप? जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं, दे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, अपने नो, ऊपर कार्बन नहीं हाइड्रोजन, इसीलिए क्योंकि आगे नहीं तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, नॉट विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं। एंड देयर इज अ सीरीज ऑफ माइनस आई ग्रुप, आप चाहो तो यहां से याद कर सकते हो, Nr3 पॉजिटिव, NO2 CN फॉलोड बाई, और जरूरी नहीं है कि आप ये सारे याद करें, इनिशियली हम थोड़े से भी काम चला सकते हैं, अभी मैंने लिख दिए हैं फिलहाल कुछ ज्यादा। Nr3 पॉजिटिव, NO2 CN COH हेलोजन, ऑब्वियसली हेलोजन 4 हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इट इज कॉमन सेंस, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फॉलोड बाई OH, फॉलोड बाई C ट्रिपल बॉन्ड C and followed by NH2, then C double bond C। तो ये भी ध्यान रखना है, वैसे तो कार्बन इज, वैसे बेटा कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, बट द ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन आ जाएगा तो नाइट्रोजन से ज्यादा नेगेटिव है। तो अगर आप ये सारे लर्न कर पा रहे हैं वेल एंड गुड है, नहीं लर्न कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें एक रिलेटिव 3-4 को याद कर लीजिए। फॉर एग्जांपल NO2 आपको पक्का याद होना चाहिए, NO2 के बाद CN छोड़ सकते हैं, COOH हेलोजन OH, एटलीस्ट ये 4 तो याद हों, एटलीस्ट ये 4 हेलोजन में अपने आप 4 हो ही गए हैं। और अगर कर सकें तो ये एक्सेप्शन है, क्योंकि या इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज मोर नेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो आप एक वर्ड ये और कर लीजिए कि दिस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज
more negative than nitrogen. Okay, so it is also important. तो ये हुआ हमारा -I के कुछ एग्जाम्पल. Okay, now after -I, definitely the opposite one is +I. तो +I में क्या डेफिनेशन होगी? ये CH बॉन्ड है और CH बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं. नाउ वी आर सेइंग दैट कि अब यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप ऐसा आएगा विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ग्रुप. तो अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ थे और हाइड्रोजन से कम पावर का एटम आ गया है, यानी कार्बन अब थोड़ा दादागिरी शो करेगा. और अब क्या होगा, क्योंकि नाउ इन दिस केस हाइड्रोजन की जगह जो ग्रुप आया वो वीकर है, तो इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ अपने आप शिफ्ट हो जाएंगे. डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये समझ में आ गया क्या कह रहे हैं? ठीक है. अदरवाइज एक रोप पुलिंग वाला गेम देखा आपने कभी? What is that game? Basically tug of war. Okay, so that is tug of war में क्या होता है, बेसिकली 4 इधर हैं 4 उधर हैं. ठीक है, अब वही चीज यहाँ है. टग ऑफ वॉर वाला केस सोचिएगा कि यहाँ इस हाइड्रोजन की जगह एक दूसरा मेंबर आ गया विच इज समवॉट प्योर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, थोड़ा कमजोर टाइप का बच्चा आ गया. अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? तो अगर इसके मुकाबले कमजोर आया है देन कार्बन डोमिनेट्स और इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आते हैं. एंड एज द इलेक्ट्रॉन इज move away from this atom or group, it gets partial positive charge, and as carbon is getting or the organic part is getting the electron, ये हमारे लिए organic या main part होगा chemistry का, organic part is getting electron, therefore it gets negative charge, partial negative charge, and those atom or groups which can develop negative charge to the organic compound which can increase the electron density on organic part are termed as +I atoms or groups. So what are +I atoms or groups? Those atom or group which can increase negative charge, which can increase electron density on organic part. तो जो भी ऑर्गेनिक पार्ट को इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं उनकी, दे आर +I एटम और ग्रुप. और जो ऑर्गेनिक पार्ट से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं दे आर -I एटम और ग्रुप. बेटा +I के भी एग्जाम्पल हैं जो कि बहुत कम है, क्योंकि ऑब्वियसली डोनर लोग ही कम होते हैं, अधिकतर एक्सेप्टर ही होते हैं. तो डोनर वाले कौन कौन से +I के हैं? देखो, एक एग्जाम्पल है O नेगेटिव जो सबसे पावरफुल +I है. देन COO नेगेटिव, जरा ध्यान रखना, ये O के साथ OH हो जाएगा तो -I हो जाएगा, ये CO नेगेटिव के साथ COH हो जाएगा तो -I हो जाएगा. तो पॉइंट टू नोट. इसके बाद है एल्काइल ग्रुप. दिस वन इज एल्काइल, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, सैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप. एंड देन ड्यूटेरियम. 90% क्वेश्चन या 95% क्वेश्चन एक इसी से हो जाएंगे. मैक्सिमम जो हमारे +I के क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम वो इसी पे आते हैं. इन 3 पे क्वेश्चन कम बनते हैं, एल्काइल पे ज्यादा बनते हैं. एंड एल्काइल के लिए याद रखना है आपको, इसके लिए हम कहते हैं इसका एक BB इफेक्ट है, दैट इज बल्की, पहले बल्कनेस देखनी है, एंड ब्रांच द alkyl group more its +I effect. तो किस alkyl ग्रुप का +I effect ज्यादा है? जो बल्की है और ब्रांच है. What I mean by saying these word bulky, branch, जैसे ये है CH3 मिथाइल, ओके, C2H5 इथाइल, C3H7 प्रोपाइल एंड सो ऑन. तो बेसिकली ये हैवी होते जा रहा है तो बल्कीनेस बढ़ रही है. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ बल्कीनेस. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांचिंग? कि अगर ये 4 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है और ये 4 कार्बन का एल्काइल ग्रुप
का इम्पैक्ट इस पॉइंट पे देखना है, यहाँ पे इम्पैक्ट देखना है, तो ये स्ट्रेट चेन है। अगर बाई चांस ये ऐसे लिखा होता, दैट इज वही 4 कार्बन है बेटा, वही 4 कार्बन है, बट अब आप चेक करो तो यहाँ पे इम्पैक्ट, इस पॉइंट पे इम्पैक्ट पहले से ज्यादा हो रहा है, बिकॉज ब्रांचिंग हो गई है। और अगर वही 4 कार्बन है बट हमने इसे ऐसे शो कर दिया है, दैट इज ब्रांचिंग और ज्यादा बढ़ा दी है, या हम यहाँ इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो आई होप सो आपको ये वर्ड पता है। ये 1 डिग्री कार्बन हमने बनाया है क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा है, और ये वाला कार्बन 3 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा है। तो जितनी ब्रांचिंग होती जाएगी, दैट मीन्स 1 डिग्री टू 2 डिग्री टू 3 डिग्री, उतना इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये एक पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा मतलब डीप मत जाइएगा, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसको ऑर्गेनिक पार्ट ही तो मानेंगे, ये भी तो ऑर्गेनिक पार्ट ही है, ठीक है। तो इसमें अब इतना मत सोचना कि अब इसको हम ऑर्गेनिक मान रहे हैं तो प्लस कहें या माइनस कहें, वो मत सोचो। बस जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो दिख जाएगा कि हमें इसको कंपेयर करना होगा, और जब हमें इनको कंपेयर करना होगा तो यहाँ जब स्ट्रेट चेन दिखेगी प्लस आई कम होगा, और जब थोड़ी सी ब्रांचिंग दिखेगी तो प्लस आई बढ़ेगा, और ब्रांचिंग दिखे प्लस आई बढ़ेगा, दैट इज कंपैरिजन। अब इसके आगे का जो चैप्टर अभी हम चलाएंगे ना, वो मेनली बेस्ड ऑन कंपैरिजन होगा। व्हाट आई मीन टू से, कंपैरिजन का क्या है, आपको ना वर्क्स में से भी बेस्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? वर्क से बेस्ट सेलेक्ट करना मतलब हमें मालूम है इंटरमीडिएट आर अनस्टेबल, सारे ही इंटरमीडिएट अनस्टेबल हो जाएंगे, फिर भी हम पूछेंगे बताओ इनमें से स्टेबल कौन सा ज्यादा है, तो आपका आंसर ये नहीं होगा सभी अनस्टेबल है। जब हम कह रहे हैं इनमें से अमंग देम विच इज मोर स्टेबल, तो यू हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट फ्रॉम द वर्स्ट। ओके, गेटिंग द पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल सपोज 4 बच्चे आपके क्लास में टेस्ट देते हैं, आप भी दे रहे हो, ठीक है। किसी एक बच्चे के लेट सपोज 95 नंबर आ रहे हैं, दूसरे के 96, तीसरे के 89 एंड फोर्थ वन इज लेट सपोज 99। ओके, तो अब अगर हम ये कहते हैं कि सपोज टेस्ट जो था वो 1200 मार्क्स का था, ठीक है, 100 का नहीं था, 1200 का था। अब हम कह रहे हैं बताओ इनमें ब्रिलियंट कौन है? 99 वाला। हाँ, ऑब्वियसली जिसके ज्यादा है वही ब्रिलियंट है। ये आंसर नहीं देना सारे के सारे गधे, मतलब ये नहीं कहना ऑल आर फेल्ड, ऐसे नहीं कहना कि ठीक है 100 में होते तो भी अच्छे थे, अब इसमें कहाँ से अच्छे हो गए। तो यू कांट से दैट। अगर हम कह रहे हैं कि इनमें कौन बेटर है, देन यू हैव टू कंपेयर अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन। ओके, तो प्लस आई और माइनस आई के ग्रुप्स ठीक से याद होने चाहिए। माइनस आई में स्पेशली NO2, CN, COH, हेलोजन, OH, C ट्रिपल बॉन्ड C, NH2, ये माइनस आई में बार बार जरूरत पड़ेगी। एंड द सेकंड वन इज प्लस आई, जिसमें जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी एल्काइल, और एल्काइल में भी जैसे जैसे एल्काइल हैवी होगा प्लस आई विल बी मोर। और अगर एल्काइल बेटा ब्रांच होने लगा तो आपको कंपैरिजन समझना है कैसे, कि अगर आप इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं तो जितनी चीज आपकी कॉमन है उसे छोड़ दो, यहां से लेके यहां तक ये तो कॉमन है, इसको तो कंपेयर ही नहीं करना। तो अब हम कंपेयर किसे कर रहे हैं उसको नोटिस करिए। हम कंपेयर कर रहे हैं इस कार्बन को, और इस कार्बन का इंडक्टिव पहले यहां जाएगा, ये तो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, फिर यहां आएगा, फिर कहीं जाके यहां आके अपना रोल प्ले करेगा। जबकि इस कार्बन का इंडक्टिव इफेक्ट इट इज अ कॉमन सेंस, पहले इस कार्बन पे आया फॉलोड बाय यहां आ गया, तो यहाँ डिस्टेंस कम है, ब्रांचिंग बढ़ने से डिस्टेंस कम हो जाती है, देयरफॉर द इम्पैक्ट इज मोर। और यहां अगर कंपेयर करना है देन अगेन, अगर हमें इन दोनों को कंपेयर करना है बेटा, तो हम कहेंगे कि इतनी चीज हमारी कॉमन है, तो इसमें पे तो कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। तो कंपैरिजन कहाँ होना है? अब हम इस पॉइंट पे इम्पैक्ट देख रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट अलग अलग है, ये यहां से पहले यहां फिर यहां आएगा देन यहां, जबकि इसका डायरेक्ट आएगा। तो स्मॉलर द डिस्टेंस मोर द इम्पैक्ट, ये याद रखना है। बोलो बेटा, ये प्लस आई और माइनस आई क्लियर है? जी सर। एनी डाउट? नहीं।
100% श्योर? हम्म, नाउ अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. व्हाट आर द एप्लीकेशंस? बेसिकली तो एक ही एप्लीकेशन है, उसी को हम बार बार चेंज करके अलग तरीके से बोलेंगे. ओके, देयर इज अ सिंगल एप्लीकेशन. क्या है बेटा एप्लीकेशन? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट. स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट. जस्ट मेन एप्लीकेशन बेटा सिर्फ एक यही है, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट. ठीक है, इस पे ही फोकस हमें करना है. पहले एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्यों पढ़ने जा रहे हैं. बेटा एक्चुअली ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली ऐसे आते हैं कि विच इज मोर रिएक्टिव, विच इज लेस रिएक्टिव, विच बॉन्ड इज वीकर स्ट्रॉन्गर, विच इज मोर एसिडिक लेस एसिडिक. सबका आंसर इसी से हो जाता है. मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव, मोर एसिडिक लेस एसिडिक, या इंटरमीडिएट स्टेबल, या और कोई. मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर इसी के अंदर एम्बेडेड है. ठीक है, तो आप इसको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं क्या कहना चाहते हैं. बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनिक में रिएक्टेंट्स होते हैं इनिशियली. ठीक है, रिएक्टेंट आपको याद है ना, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग रिएजेंट. जो रिएक्टेंट है हमारे दैट इज सबस्ट्रेट. रिएक्टेंट रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं बेटा? इंटरमीडिएट्स. यस, तो यहाँ बनता है इंटरमीडिएट. ओके, so intermediate is a in between stage which is now, or you can say in the next step it has to convert it into some other. इसमें चेंज होगा. क्या? Pardon? Products. मैंने Obviously. ठीक है, so it will convert into product. ठीक है, ठीक से पढ़ लो नहीं तो बाद में RIP रह जाएगा. Okay, any doubt? That is reactant intermediate product. Okay, so अब इस तीनों को क्या समझना है वो देखिए. बट अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि योर रिएक्टेंट इज हाईली स्टेबल, इफ यू प्रूव्ड इट रिएक्टेंट इज स्टेबल, ओके, दैट मीन्स इट इज नॉट रिएक्टिव. एंड इफ इट इज नॉट रिएक्टिव then it is guaranteed that the product of such reactant will be very very less or least. Getting the point? ये पॉइंट क्लियर है? प्रोडक्ट अगर कितना होगा सर अगर रिएक्टेंट स्टेबल होगा? अगर रिएक्टेंट स्टेबल है तो उससे प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो स्टेबल है, रिएक्ट ही नहीं करेगा ना. तो इफ द रिएक्टेंट इज स्टेबल देन इट विल नॉट रिएक्ट, एंड इफ इट विल नॉट रिएक्ट देन डेफिनेटली इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. एनी डाउट? क्लियर? ठीक, अब जो अगला पॉइंट है ना वो परेशान करता है बच्चों को. क्यों? क्योंकि उन्हें पहले पॉइंट से कंफ्यूजन हो जाता है. सो द सेकंड पॉइंट, बेटा इसे ध्यान से सुनिएगा. द सेकंड पॉइंट, इफ more than one kinds of intermediate can be formed, A, B, C. If more than one kinds of intermediate can be formed, may be formed. क्या मतलब हुआ इसका जरा सुनना. बेटा हम ये कह रहे हैं सपोज ये एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन में ये हाइड्रोजन भी हट सकता है, ये हाइड्रोजन भी हट सकता है और ये भी हट सकता है. There is possibility that the reaction might occur at this place, at this place, at this place. तीनों जगह से रिएक्शन हो सकती है if there is a possibility. Getting my point? ठीक, तो यहां से भी इंटरमीडिएट बन सकता है, यहां से भी इंटरमीडिएट और यहां से भी. All the three can give intermediate. Is it clear? So if there is a possibility of forming more than one kind of intermediate, ठीक है, सपोज ये तीन बन गए इंटरमीडिएट, तो इनमें रिलेटिव स्टेबिलिटी देखेंगे विच इज मोर स्टेबल एंड विच इज लेस स्टेबल. लेट सपोज अभी मैंने ऐसे मान लिया है
कि B is more stable than other two. So let's suppose, या हम एक ऑर्डर ले लेते हैं जिससे कि और क्वेश्चंस भी हो जाएं. सपोज ये हमने ऑर्डर में ले लिया A is more stable than B than C. Let's suppose that. Okay. Now the question is this, अगर A ज्यादा स्टेबल है, मान लेते हैं इसको हमने A कहा है, इस कार्बन को B कहा है, इसको C. If A is more stable, the intermediate A is more stable, then the product will more form or less? Less formed. यही गलत है. Oh wow. यही गलत है और यही मैंने आपको समझाना है, इसीलिए मैंने चाहता हूं that you will do this mistake. Okay, tell me why it is wrong. Yes, tell me. If A is more, okay, B और C unstable है तो वो मिलके ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे. No. इनकम. देखो पॉइंट समझिए, फिर से समझा रहा हूँ. सपोज दैट आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया. लेट्स सपोज यू स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ वुड एंड वर्क. ओके, तो अब आपने क्या किया, वुड वर्क के लिए आप कोई प्लांट ट्रंक ले आए, एक काफी बड़ा सा पेड़ ले आए और आप उसके वुडन आर्टिकल्स फर्नीचर बना के बेचना चाहते हैं, व्हाटएवर. सो द फर्स्ट थिंग, आप वुड लेके आए, एक बड़ा सा पेड़ ले आए, बट एज यू वांट टू सेल द गुड प्रोडक्ट, आप इतना स्टेबल वुडन ट्रंक ले आए हैं, इतना स्टेबल ट्रंक ले आए हैं ये कि it is even can't be cut, break or whatever, even you put RDX on it, then also nothing is happening. तो क्या इससे कुछ बन के या कट के बिकेगा? नहीं. If it is not changing into other, तो इससे आगे कुछ नहीं होगा. तो it is reactant. अगर ये स्टेबल हो गया, if it is stable, तो ये अपने अंदर चेंजेस नहीं होने देगा. ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट. द सेकंड पॉइंट इज दिस, आपने फिर से बिजनेस स्टार्ट किया और अब की आप वुड लेके आए हो और वो वुड इजीली कट तो हो रही है, बट आपने जब इसकी कटिंग की तो लेट सपोज आपको 70 पीसेस मिल रहे हैं इररेगुलर शेप के, मतलब आप उस शेप को डिफाइन नहीं कर पा रहे हो क्या है. लेट सपोज 20 पीसेस मिल रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप के और 10 पीसेस मिल रहे हैं आपको सर्कुलर शेप. नाउ द क्वेश्चन इज दिस, ये तो जस्ट पहले आपने वुड कट की है. ओके, ये जो बना है ये फाइनल नहीं है, मतलब इसकी अभी गार्निशिंग, इसकी अभी पॉलिशिंग, ये सब होगी तब फाइनल होगा. नाउ द क्वेश्चन इज दिस, आप कौन सा आर्टिकल आगे ज्यादा बना के बेच सकते हो, ये या ये? Which article you can form more pieces? irregular शेप के ज्यादा पीसेस बनेंगे आपके या रेक्टेंगुलर के या सर्कुलर? irregular के. Common sense, it is available more. It is more, therefore it will transform more. Getting the point? जी. These three are intermediate, all are unstable, but among these three it is more stable, तभी ये ज्यादा बना है. Among these three it is stable, therefore it will convert into product easily, क्योंकि इन तीनों को ही प्रोडक्ट में जाना है, because these are intermediate. तो इन तीनों को ही प्रोडक्ट में जाना है क्योंकि इन तीनों में ये ज्यादा अवेलेबल है, इसी के प्रोडक्ट तो ज्यादा बनेंगे. So now the point is this, if the intermediate is stable, थोड़े अपोजिट वर्ड्स हैं इसलिए बच्चों से कंफ्यूजिंग हो जाता है. If the reactant is stable, product will not form, क्योंकि reactant चेंज ही नहीं होगा. But if the intermediate is stable, तो यहाँ जो intermediate is stable word है ना, it is a comparative word. Intermediate कभी stable नहीं होते, intermediates are always unstable. If I am saying intermediate is stable, then it is in comparison to other intermediate. So इनमें से ये ज्यादा stable, and if it is more stable, then its product will be more. अगर ये intermediate stable है तो इसका product क्या होगा? ज्यादा. Getting the point? अब आया समझ? Yes sir. क्लियर एकदम? अच्छा, आपने ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस सुना हुआ है कंसेप्ट? नहीं सुना. आपने ये सुना है कहीं कि इफ एसिड इज स्ट्रॉन्ग देन इट्स कॉन्जुगेट बेस इज वीक? ऐसा तो सुना ही होगा 10th स्टैंडर्ड तक कि एसिड और बेस होते हैं, अगर एक स्ट्रॉन्ग है तो एक वीक होगा. ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट में हम यही वर्ड कहते हैं, इफ इंटरमीडिएट इज स्टेबल
अगर बेटा इंटरमीडिएट स्टेबल है तो इट्स रिएक्टेंट बॉन्ड विल बी रिएक्टिव। आया समझ में? सोचो इसे। इफ इंटरमीडिएट इज स्टेबल देन इट्स रिएक्टेंट बॉन्ड विल बी रिएक्टिव। क्यों? नहीं आया। ऑल दीज आर कंपैरेटिव। मैंने कहा ना सारा कंपैरिजन का गेम है। अगेन अगर हम कह रहे हैं रिएक्टेंट स्टेबल है तो इन तीनों में ये ज्यादा स्टेबल है। दैट मींस इन कंपैरिजन टू दिस एंड दिस इट इज मोर स्टेबल। और अब ये जो बना होगा किसी बॉन्ड टूटने पे ही बना होगा और ये भी किसी बॉन्ड टूटने पे ही बनेंगे। दैट मींस इसका बॉन्ड ज्यादा टूटेगा तभी तो ये ज्यादा बन रहा है। और अगर इसका बॉन्ड ज्यादा टूट रहा है दैट मींस दैट बॉन्ड इज वीकर, दैट बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव। So we can say that product reactant की stability is inversely proportional to the amount of product formed and intermediate नहीं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डायरेक्ट मत गो करें, ठीक है? बट जो अगर प्रोडक्ट ज्यादा रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा ना। और हाँ, वो बात तो ठीक है। और इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल है उतना ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। यस तो डेफिनेटली ये बात ठीक है। तो रिलेट क्यों नहीं कर सकते? हाँ मैं यही कह रहा हूँ ना। एक्चुअली ना पॉइंट ये कि इन ऑल द केसेस पूरी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑल द कंपाउंड्स आर स्टेबल। बेसिकली जो भी नेचर में कंपाउंड एग्जिस्ट करता है उसमें वैलेंसी उसकी सबकी 4 कंप्लीट बैलेंस होती है तो वो अपने आप में स्टेबल होता है। इट इज द अटैकिंग रिएजेंट ड्यू टू विच रिएक्शन स्टार्ट होती हैं, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में चेंज होता है। तो बेसिकली आपको समझना क्या है कि इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जस्ट लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे बचपन में बिल्डिंग ब्लॉक्स का गेम होता था ना, किसी बच्चे को आपने 10 ब्लॉक्स दिए, उसने रोड बना दी, उन्हीं 10 ब्लॉक से किसी ने कोई और चीज बना दी। तो हो क्या रहा है, ब्लॉक्स का रीअरेंजमेंट होता है। एक ब्लॉक हटाते हैं, जैसे एक ब्लॉक हटाते हैं तो कैविटी बन जाती है, उस कैविटी में दूसरा ब्लॉक फिट करना होता है। सेम इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेसिकली हम ये नहीं कहते कि अगर रिएक्टेंट अनस्टेबल है, रिएक्टेंट कभी अनस्टेबल होते ही नहीं। रिएक्टेंट तो जो है हाँ ये कह सकते हैं किसी रिएक्टेंट में रेजोनेंस हो गई, किसी रिएक्टेंट में और कोई कंडीशन दिखी तो हम कह सकते हैं ड्यू टू रेजोनेंस इट इज हाईली स्टेबल। ओके, तो वो रेजोनेंस अभी आगे मीजोमेरिक इफेक्ट आएगा उसमें वर्ड आ जाएगा। तो अभी यहाँ का जो पॉइंट था वो ये कि ये कार्बन है, इस चेन में लेट सपोज ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है और ये भी बॉन्ड ब्रेक होके हाइड्रोजन अलग हो सकते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया, जो नाम है वही दे देता हूँ, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। तो बेसिकली 3 अलग पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। मतलब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो एक बारी हम कहेंगे हो सकता है यहाँ पॉजिटिव चार्ज आए और यहाँ कुछ ना हो, एक बारी हम कहेंगे नहीं भाई यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा इनका कुछ नहीं होगा, और एक बारी हम ये भी कहेंगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा इसका कुछ नहीं होगा। और फिर हम ये कहेंगे ये बना कार्बोकैटाइन और इंटरमीडिएट। ये 3 डिग्री कार्बोकैटाइन है, ये वाला 2 डिग्री कार्बोकैटाइन है, ये 1 डिग्री। इज इट क्लियर? और अब कोई नेगेटिव आके अटैक करेगा, ये अब देखते हैं ये ज्यादा स्टेबल हुआ तो ये ज्यादा अवेलेबल होगा, इसका प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। ये कम स्टेबल है प्रोडक्ट। इज इट क्लियर क्या कहना चाहते हैं? Yes. गेटिंग द पॉइंट? तो अब हम हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। कौन सा इंटरमीडिएट स्टेबल है ज्यादा, कौन सा कम है वो देखना है। नाउ बेटा कोई भी इंटरमीडिएट हो, फॉर एग्जाम्पल ये है कार्बोकैटाइन, लेकिन जानबूझ के हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि यहाँ सपोज कोई ए ग्रुप या हाइड्रोजन लगे हैं और यहाँ क्लोरीन लगा है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन हुआ और हेट्रोलिटिक होने की वजह से ये बन गया। ओके, तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होने के बाद ये कंडीशन आ गई। नाउ विच इज मोर स्टेबल, दिस और दिस? इट इज अ कॉमन सेंस। रिएक्टेंट स्टेबल है या ये जो बना ये स्टेबल है? जो पहले था वो स्टेबल है। दैट इज रिएक्टेंट इज स्टेबल और ये अनस्टेबल हो गया। ओके, तो बेटा अगर ये अनस्टेबल हुआ है देन इट इज अनस्टेबल, या इसमें जो एडवर्स कंडीशन आई है वो ये है, ये इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया।
यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो ये लेके चला गया, तभी इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। प्लस। तो अगर हम ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये मिनिमाइज कर दें, ये चार्ज कम कर दें, तो इंटरमीडिएट स्टेबल हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट को स्टेबल करने के लिए हमें करना क्या होता है? जो भी एडवर्स इफेक्ट आ गया है, जो भी कंडीशन अनवांटेड अब डेवलप हो गई है, उसे कम करना है। जैसे यहाँ चार्ज प्लस आ गया है, जितना ये प्लस चार्ज कम होगा, इंटरमीडिएट स्टेबल होगा। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, अगर माइनस चार्ज आता तो? तो हम लोग नेगेटिव चार्ज को मिनिमाइज करते। वेरी गुड। तो ये कोई मतलब नहीं है कि चार्ज प्लस है या माइनस है, वॉट एवर द चार्ज, वी ट्राई टू मिनिमाइज दैट चार्ज, एंड लेसर द चार्ज, more will be the stability of the intermediate. Is it clear? मतलब it is somewhat अच्छा, आपके फादर किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? वो एडिटर हैं एक पब्लिक रिलेशंस कंपनी के लिए। अच्छा, मतलब दैट इज नॉट पुलिस में नहीं है, इसमें उसमें नहीं? नहीं। ओके, ठीक है। मैं पुलिस सिर्फ एमिरातीज है, मतलब लोकल। अच्छा, नहीं, यूजुअली ना जो को क्रैक करने से पहले पूछ लेना चाहिए ना, कि बाई चांस बाद में क्या, सर एक्चुअली माय फादर इज दिस, मुझे फिर बाद में ऑड लगे, मैंने अच्छा पूछ लेता हूँ। सपोज अगर कोई एक पर्सन है और उसको ये लगता है कि उसके घर से चोरी हो गई, स्टील थिंग्स कुछ गायब है, स्टोलन हो गई है, तो अब इसके जो पैसा वैसा ये सब है, चोरी हो चुका है। लेट सपोज ये अपने दोस्त को कॉल अप करता है, फोन कॉल करता है कि यार, ए दोस्त को फोन किया कि यार मेरे घर चोरी हो गई। ओके, तो एक रिस्पॉन्स तो दोस्त का एक सिंपल जो हो सकता है वो ये है, हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, ओके वी विल टॉक लेटर, बाय बाय, आई एम बिजी बिजी। इनने आगे कोई जवाब नहीं। एक फ्रेंड ऐसे भी होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं ठीक है चोरी हो गई, अब हमें कोई पंगा ले रहा। सपोज इसने बी फ्रेंड को फोन किया, एंड जब इसको फोन किया, इससे कहा कि यार मेरे घर ये प्रॉब्लम आ गई है, चोरी हो गई, पैसे वैसे नहीं। नाउ ही से ओके, पैसे नहीं है, चल ठीक है, ऐसा कर, मैं तेरे पास कुछ पैसे भेजता हूँ, अभी तू काम चला, वी विल टॉक इट लेटर, तो अभी काम तो चला अपना, ये कुछ पैसे भेज रहा है। एक सी टाइप के दोस्त भी हो सकते हैं। ओके, इनको पता चला कि चोरी हो गई है, फोन कॉल आया, चोरी हो गई है। ओके, अब ये क्या करते हैं, लेट सपोज, मतलब ये पुलिस में थे, अच्छा तेरे पास इतने पैसे थे, तू थोड़ा और पैसे ला, पहले तेरी रिपोर्ट लिखूंगा, ठीक है, मैं इसको एडवर्टाइज करूंगा, 4 लोगों को बताऊंगा, पहले और पैसे ला, तब मैं बताऊंगा ये। तो इसने पैसे ले लिए। तो किस केस में ये ज्यादा सुकून फील करेगा? बी में। सी बी ए। बी में। देन ऑर्डर बताना है। हाँ, देन बीएससी में। बी ए, क्लियर? तो ए इज, अगर समझ में आया हो, इट इज न्यूट्रल, नाइदर प्लस नॉर माइनस। बी इज बेसिकली, हम इसे प्लस आई इफेक्ट कहना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एंड सी इज माइनस आई, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इज इट क्लियर? तो ये कार्बोकैटाइन का केस था, कि कार्बोकैटाइन का मतलब इस कार्बन के यहाँ चोरी हो चुकी है, और यहाँ पीछे कार्बन एक और लगा है। लेट सपोज इस कार्बन पे NO2 ग्रुप है, और अगेन यही कंडीशन दोबारा मैंने बनाई है, और यहाँ पे लेट सपोज कोई दूसरा ग्रुप लगा लेते हैं, लाइक CH3 है। नाउ वी आर सेइंग इन दोनों में कौन सी चीज ज्यादा स्टेबल है? कंपेयर करने का तरीका सिंपल वही रहेगा, जहां तक कॉमन है वहां तक कोई कंपैरिजन की बात ही नहीं करनी, जो चीज अनकॉमन है उसे कंपेयर करें। यहाँ एक ग्रुप लगा है विच इज NO2 एंड इट इज माइनस आई, it is methyl, it is plus I. Which intermediate is more stable, A or B? Which intermediate is more stable and why? Which is B is more stable. Why? Because उसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है। 2 पॉजिटिव चार्ज? नहीं,
फिर ओके देखते फिर से, देखो यहाँ प्लस चार्ज थे, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है. दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज NO2. NO2 इज ए माइनस आई. माइनस आई क्या करता है बेटा? माइनस आई क्या करता है? माइनस आई अपने आप पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिलवाता है. दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन छीनता जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा. एंड इफ चार्ज इज इंक्रीजिंग देन द स्टेबिलिटी इज डिक्रीजिंग. मैं तो इफेक्ट मिनिमाइज करना था ना. जबकि ये वाला ग्रुप प्लस आई है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और डोनेट करेगा तो ये चार्ज डिमिनिश होता जाएगा. चार्ज कम होगा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, चार्ज बढ़ जाएगा स्टेबिलिटी कम हो जाएगी. बेसिकली ये मैंने वही जो एग्जांपल अभी दिया था ना, यहाँ चोरी हो गई, इसने पुलिस को फोन कर दिया गलती से, तो पहले तो खाली चोरी हुई थी, अब डकैती शुरू हो जाएगी. इज इट क्लियर? मतलब चोर तो चुपचाप ले गया था सामान, और ये जो पुलिस आएगी ये तो कह के ले गया, अच्छा तेरा सामान था तेरे पास तो और पैसे दे दे. ठीक है, वर्ड क्लियर है? डन, गेटिंग द पॉइंट. एक आपने वर्ड सुना ना करेला, करेला वर्ड सुना? आई डोंट नो द इंग्लिश ऑफ दिस करेला. ओके सर आपकी आवाज नहीं आ रही. ओह माय गॉडनेस, गिव मी अ मोमेंट. हेलो, गिव मी अ मोमेंट यार. हेलो, आर यू गेटिंग माय वॉइस नाउ? यस यस अब आ रही है. आ रही है अब? जी आ रही है अब? जी जी आ रही है. हैव यू हर्ड द वर्ड करेला? हाँ, बिटर गॉड खाया है. बिटर गॉड, वाह, वेरी गुड. सो एनीथिंग idiom and phrases in Hindi, something like करेला नीम चढ़ा. तो मतलब सुना, और समझा? कड़वा हो गया. हाँ, बहुत ही ज्यादा कड़वा हो गया. तो बेसिकली ये तो पहले से करेला था ही, ऊपर से नीम चढ़ा भी हो गया. मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही नहीं थे, ऊपर से दोस्ती NO2 से कर ली, तो प्लस चार्ज और बढ़ गया, तो अनस्टेबल हो गया. जबकि यहाँ इसका चार्ज मिनिमाइज हुआ तो स्टेबल. इज इट क्लियर? यस सर. नाउ it is CH3 CH2 CH2 plus, and here it is CH3 CH3 plus. Which is more stable, 1 or 2, and why? Yes. Two is more stable. Why? Because one में inductive CH2 लास्ट कार्बन पे like पॉजिटिव इफेक्ट है, तो वो पहले दो कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनना चाहेगा, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, लेकिन सेकंड में मतलब देखो, फर्स्ट थिंग चार्ज बढ़ेगा तो कहीं नहीं, कम दोनों जगह होगा, बढ़ेगा तो नहीं, बिकॉज इस पे प्लस चार्ज है. और ये ग्रुप्स देखो बेटा, जो चीज कॉमन हो उसे तो कंपेयर ही मत किया करो. तो यहाँ क्या चीज आपको लग रहा है कॉमन है? सपोज ये 2 हटा देता हूं मैं, और इसकी जगह मैं H को अलग से लिख देता हूं, तो आपको शायद अब कुछ कंपैरिजन सही लगे या समझ में आ जाए कि इतना ग्रुप ऑलमोस्ट कॉमन है. ओके, और ये वाला मिथाइल पहले इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, उसके बाद यहां तक पहुंचेगा, जबकि ये मिथाइल डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन यहीं दे रहा है. क्लियर? तो इसकी अप्रोच ज्यादा है, इसके इलेक्ट्रॉन तुरंत आ जाए. दैट मीन्स ये प्लस चार्ज ज्यादा डिक्रीज होगा. डिक्रीज तो दोनों में होगा क्योंकि इट इज ऑल्सो प्लस आई, बट ड्यू टू ब्रांचिंग, बिकॉज ये इसके ज्यादा नियर है लोकेशन के, इसके इलेक्ट्रॉन जल्दी इंपैक्ट करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन जल्दी इंपैक्ट करेंगे चार्ज कम हो जाएगा, चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा. और बेसिकली मैंने जो बोलना चाहा था, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, एंड 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री. एक और एग्जांपल से करते हैं. CH3CH2 CH2 CH2 plus, CH3 CH2 CH CH3 plus.
which is more stable, 1 or 2? 2 is more stable क्योंकि वो Very good. secondary carbocation. Very good. Now, it is CH3 whole thrice C plus, and it is CH3 whole twice CH2 plus, which is more stable. वो first option क्योंकि वो Very good. third second tertiary carbocation. Very good. It is tertiary carbocation, and it is primary carbocation. ठीक है, और मेन थिंग है इस प्लस चार्ज वाला जो कार्बन है इस पे इम्पैक्ट देखना है. यहाँ पे तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन आएगा, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1. एनी डाउट इन दिस? No sir. No doubt. Now, ये लिखा है बेटा CH3 CH, लेट सपोज यहाँ F लगा है. Now CH3 CHCl, ये टफ हो गया, सॉरी, इतना टफ अभी नहीं करना. मतलब इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट भी इन्वॉल्व है, वो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, तो वो नहीं करना है. ओके, CH2F CH2 plus CH2 NO2 CH2 plus, which is more stable, 1 or 2? 1. Why? Because NO2 ज़्यादा है. Good. NO2 is more electronegative or more minus I effect than F, and therefore its impact will be more. The charge will be high. और चार्ज ज्यादा तो अनस्टेबल, चार्ज कम तो स्टेबल. नाउ अब हम करते हैं इसमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन. ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर. लेट्स चेक इट. ये बेटा 4 कार्बन एटम चेन है. दीज आर कॉल्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. यहाँ पॉजिटिव चार्ज एंड हियर अ ग्रुप Cl इज रिटन. यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ लगे हैं लेट सपोज 2Cl, और अगेन पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ लगा है NO2, which is more stable, 1, 2, 3. एक मिनट सर. Yeah, it is little bit on higher side. थोड़ा टफ क्वेश्चन है. सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट वाला होगा ना? वेरी गुड. फिर उसके बाद NO2 एंड देन द सेकंड वाला. चलिए, इसका सही आंसर पता है क्या है? 3, 2, 1. मोस्ट स्टेबल इज थर्ड. बट पिछले वाले में आपने कहा था कि फ्लोरीन ज्यादा हो है. बता तो रहा हूँ. The point is this, बेटा NO2 is highest minus I, ठीक है. बट आप एक वर्ड भूल गए जो मैंने स्टार्टिंग में इंडक्टिव इफेक्ट में बताया था. इट इज डिस्टेंस डोमिनेटिंग इफेक्ट. मतलब इट इज रैपिडली डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस. सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन में डिस्टेंस मैटर करती है. पिछले क्वेश्चंस में आपको अगर ध्यान हो तो डिस्टेंस इज सेम. इस कार्बन पे इंडक्टिव आना है, इसके सेकंड कार्बन पे NO2 है, इसके सेकंड कार्बन पे F है. डिस्टेंस इज सेम. We are comparing only the power of minus I group, but in this question distance is different. यहाँ NO2, यहाँ पे इंडक्टिव आना है, यहाँ NO2 is very much far, और ये minus I है, minus I इलेक्ट्रॉन खींचता है, but as it is very much far, बहुत ज्यादा दूर है, its impact is very 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 little. Getting my point? और अगर इसका इम्पैक्ट ही लिटिल है तो चार्ज नहीं बढ़ेगा. What's the point? यहाँ 2-2 ग्रुप लगे हैं.
but still distance is far in comparison to this. अगर इसकी डिस्टेंस सबसे कम है, इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है, और अगर इम्पैक्ट ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बहुत ज्यादा, यहाँ सबसे कम, और यहाँ सबसे कम। क्लियर? जी। ठीक है बेटा, यहाँ तक? मतलब आज आप थोड़ा डाउन लग रहे हो, मतलब थोड़ा थके हुए लग रहे हो, यू आर लिटिल बिट सीम्स टायर्ड और फटीग और अंडर प्रेशर, समथिंग लाइक दिस, या फिर मुझे भूख लग रही है। मैं कह तो रहा हूँ कुछ ना कुछ तो, दैट सीम्स यू वांट अ लिटिल बिट ब्रेक और रेस्ट। चलो, क्लियर है यहाँ तक? जी। ओके ओके, दैट्स इनफ फॉर टुनाइट। सर, हम लोग ये चैप्टर कब तक कितने क्लासेस में खत्म कर पाएंगे? बेटा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, आप चाहोगे मैं स्पीड बढ़ा भी दूंगा। ट्राई टू गेट वन थिंग, जितना भी मैंने आपको लास्ट टर्न पे पढ़ाया था वो आज के शुरू के 5 मिनट में रिवाइज या 7-8 मिनट में रिवाइज कर ली। तो अगर मैं उसी स्पीड से पढ़ा दूंगा तो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। और जिस स्पीड से अभी ये पढ़ाया है, मतलब आज के लेक्चर को अभी मैं भेजूंगा ही, तो आप देख लेना कि दोनों मेथड है हमारे पास। कंटिन्यूस स्ट्रोक में भी हम चलते जाते हैं, और ये जो तरीका है टीचिंग का, ये थोड़ा सा स्लो करके कि एक एक चीज बताते गए, तो इंटरेक्ट किया, पूछा बताया। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, एंड दिस चैप्टर इज क्वाइट बिग, बहुत बड़ा चैप्टर है, बिकॉज इट नॉट ओनली हैव इंडक्टिव, मीसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक, इट ऑल्सो हैव अदर थिंग, आइसोमेरिज्म भी है, प्यूरिफिकेशन है, डिस्टिलेशन, एस्टिमेशन। ये ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था इसके लिए, तो आई एम स्टडीइंग दिस बिकॉज फिर 12th ग्रेड में परेशानी होगी अगर ये स्ट्रांग नहीं हाँ, तो आप इंडक्टिव, मीसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन पे ज्यादा फोकस करें। ओके, ठीक है। तो मुझे अपने क्लास से आगे बढ़ना है, इसके बाद भी करना है, छुट्टियां हैं तो क्योंकि सर, वो टीचर कह रही थी, आज मेरी अपनी स्कूल की केमिस्ट्री टीचर से बात हुई, वो कह रही थी कि बहुत सारे बड़े बड़े चैप्टर्स बचे हुए हैं अभी, तो जैसे ही स्कूल शुरू होगा दे विल रन विद द पोर्शंस, एंड उनको तो सिर्फ पोर्शन कंप्लीट करके टेस्ट लेना है। तो डेफिनेटली इसके आगे के चैप्टर्स बहुत बड़े हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन इज क्वाइट बिग, थर्मोडायनेमिक्स, हाइड्रोकार्बन वो लोग पढ़ा चुके हैं, टेस्ट नहीं हुआ है उसका लेकिन पढ़ा चुके हैं, तो इसलिए वो लोग पोर्शन बहुत जल्दी पढ़ा के खत्म कर देंगे, सो आई वांट टू बी अहेड। Okay, don't worry, we will take extra classes, and don't worry, within a month you will be ahead to them. इस छुट्टियों में अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स खत्म कर दें, ठीक है, 101% आराम से करा दे। हाँ, ठीक है बेटा, ओके सर, ओके, हैव अ नाइस टाइम, ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।